Good morning students, this is GK video and we have done chapter number 28 general quiz on page number 34 and I have given you chapter number 29 yummy food processor on page number 35 as homework. So it was a easy chapter, that's why I have given you as homework. Just you have to find out those picture names. Some pictures are given of food which you usually eat in your day-to-day life, and those food spellings of those foods are given in a sentence. So you have to find out that word which is hidden in that sentence and you have to underline that word. Clear? So in the first it is given turnip. It has given as an example, so it has done it by the book publisher. And second one is peach. So in the second sentence you will find out peach spelling. In the third you will find out apple. In the fourth you will find out bean, and in the fifth you will find out rice, sixth tomato, seventh is salad, and eighth will be candy. Clear? So this was the chapter, and we are skipping this chapter, that's why I have given you just for the task. And if you turn the page and come to the page number 36, you will find an activity that is a game kind of thing. You have to use some newspapers and cardboards for this activity, and you have to paste the seeds, right? You know the seeds, every fruit has seed, right? So you can paste any fruit seed in this activity. It is not important one, because if we were in the class we can do the group activity sort of things, but in our online classes it won't be possible. So I am skipping this chapter as well, that is on page number 36, and come to the page number 37, creepy crawlies. So today's chapter is creepy crawlies, that is on 37. Clear? And it is the chapter number 31. So write down the 31 in front of the creepy crawlies and come to the page number 37. We will discuss. Creepy means some ugly kind of creature which is not usually good, right? By looking at it we see like having certain feeling of ugliness. So creepy means that thing, and crawly means they are not having legs, they will crawl. जैसे छोटा बच्चा जो जब तक खड़ा नहीं हो पाता है वो क्रॉल करता है, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड एंड लेग्स. तो वो क्रॉल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, राइट? तो ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके पाँव तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो दे क्रॉल. तो दैट्स वाई देयर नेम हैज़ गिवन creepy crawlies. Clear? So we are going to start with the chapter. So this is the chapter. You have to write down today's date, that is whatever the date is, and you have to write down chapter number, that is 31, and come to the page number 37. Clear? So as you can see, the pictures are given and some descriptions are given about these insects. So first one is, you have to read these clues and identify these insects. Clear? So these are the clues given. This insect makes the loudest sound in the world. You can hear its sound 500 meters away. ये इतनी तेज आवाज करता है, बहुत तेज आवाज करता है, और वर्ल्ड में सबसे तेज आवाज करने वाला इंसेक्ट है यही है, और ये 500 मीटर अगर दूर आवाज कर रहा है तो भी सुनाई देगी इसकी आवाज. ठीक है? तो फर्स्ट वन इज सिकाडा. What's his name? Cicada. C-I-C-A-D-A. Clear? Second one, as you can see, it is some like spider. तो spider में जहाँ पे option है तो obvious सी बात है वही होगा. But let us know about something about this. The poison of this creature can kill a man in few seconds.
इसका जो जहर है, पॉइजन मतलब होता है जहर, ठीक है, तो इसका जो जहर है अगर किसी मैन को, इसने किसी इंसान को काट लिया तो वो कुछ सेकंड में ही मर जाएगा। समटाइम्स इट ईट द मेल पार्टनर, इसका जो मेल पार्टनर होता है, मतलब एक फीमेल होता है एक मेल होता है, इंसेक्ट में भी वही चीज है, एक मेल एक फीमेल, तो फीमेल जो पार्टनर है वो अपने मेल पार्टनर को भी खा लेती है कभी कभी। क्लियर? सो इट्स नेम इज ब्लैक विडो स्पाइडर। ब्लैक विडो मतलब क्या होता है? जिसका पति मर जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विधवा जो बोलते हैं ना। तो ब्लैक विडो स्पाइडर ये अपने मेल पार्टनर को ही खा लेती है, तो दैट्स वाई इट्स हर नेम इज ब्लैक। इसके लिए क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक कलर में होती है, सो दैट्स वाई ब्लैक विडो स्पाइडर। क्लियर? इसके नाम से ही फुली जस्टिफाई हो रहा है इसके एक्शंस, ठीक है। थर्ड वन, एज यू ऑल नो, ये क्या है? कॉकरोच। सो दिस इज द एक्सीलेंट रनर इन द इंसेक्ट वर्ल्ड। इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही एक्सीलेंट रनर है, दौड़ने वाला बहुत ही एक्सीलेंट रनर होता है पूरे इंसेक्ट्स में। और कितना किलोमीटर दौड़ सकता है ये? 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है ये। क्लियर? सो here is the spelling given, cockroach. You have to write down the proper spellings. Clear? You will not write the numbering in front of these options. You will write the proper spelling. Fourth one, this is the world's biggest butterfly with 25 centimeter wide wings. It lives in the forest of Papua New Guinea. ठीक है, ये सबसे बड़ी बटरफ्लाई है जिसके विंग्स कितने बड़े हैं? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी जो विंग्स हैं वो इतनी लंबी हैं, ठीक है, चौड़ी हैं। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो ये कौन से फॉरेस्ट में रहते हैं? ये गिनिया बाहर का देश है, तो आपको ये इस फॉरेस्ट का नाम है, ठीक है। सो फोर्थ वन इज क्वीन अलेक्जेंड्रा। इस बटरफ्लाई का नाम क्या है? क्वीन अलेक्जेंड्रा। फिफ्थ वन, दिस इज द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट। ये वर्ल्ड का सबसे भारी फ्लाइंग इंसेक्ट है। भारी समझ, हैवीएस्ट समझ में आ रहा है? भारी, ठीक है, सबसे भारी उड़ने वाला इंसेक्ट है। इट वे ओवर 100 ग्राम्स एंड ग्रो एज मच एज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका 100 ग्राम वेट होता है और 13 सेंटीमीटर लंबाई होती है, ठीक है। सो व्हाट्स इट्स नेम? इट इज गोलियाथ बीटल। गोलियाथ बीटल, ठीक है। फिफ्थ वन इज गोलियाथ बीटल। सिक्स्थ वन, दिस इंसेक्ट हैज नो विंग्स। इसके पास कोई विंग्स नहीं है, वो ये अजीब तरह का दिखने वाला इंसेक्ट है, इसीलिए इसको क्रीपी बोला गया है। सभी को क्रीपी बोला गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अगलीनेस। ये इतना देखने में गंदे होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज क्रीपी, राइट। सो दिस इंसेक्ट हैज नो विंग्स। इट कैन जम्प 30 सेंटीमीटर इन द एयर। विंग्स नहीं होने के बावजूद ये 30 सेंटीमीटर हवा में जंप लगा सकते हैं। 30 सेंटीमीटर्स काफी दूरी होती है, समझ में आ गया। सो इट कैरीज द जर्म्स ऑफ प्लाक। प्लाक एक तरह की बीमारी है, वो उस बीमारी के जर्म्स को भी कैरी करते हैं अपने लेग्स में, ठीक है। सो दीज आर द, एंड इट्स नेम इज फ्ली, FLEA, ठीक है। So this is all about this chapter, and if we talk about some fact, there is given over here. The Indonesian giant stick insect is the world's longest insect. It measures about 33 centimeter long. इंडोनेशियन का एक जाइंट इंसेक्ट, जाइंट मतलब लंबा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भयानक दिखने वाला, बहुत ही बड़ा। सो इंडोनेशियन एक जाइंट स्टिक इंसेक्ट है, चिपकने वाला इंसेक्ट है, जो सबसे लॉन्गेस्ट इंसेक्ट का रिकॉर्ड है उसका। सो दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो इंसेक्ट माना गया है वो कौन है? इंडोनेशियन जाइंट स्टिक इंसेक्ट, ठीक है, स्टिक इंसेक्ट भी बोल सकते हैं उसको।
इट मेजर्स अबाउट 33 सेंटीमीटर लॉन्ग, 33 सेंटीमीटर का लंबाई उसकी होती है. क्लियर? सो एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. आप लोग कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बार बार बोलने के बावजूद नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज द बॉटम क्वेश्चन विच आई एम टॉकिंग अबाउट in each and every GK chapter. So this is the bottom question, you have to answer it. Which mosquito is the carrier of dengue virus? यहाँ पे किसके जर्म्स ले रहा था? प्लाक के. यहाँ पे किसके वायरस के हैं? डेंगू के. डेंगू भी एक तरह की बीमारी है. तो डेंगू अगर हो जाता है किसी को तो वो उसके वायरसेस कौन से मस्कीटो फैलाते हैं? एडेस मस्कीटो. एडेस मस्कीटोस. So you have to write down the answer in front of this question. ठीक है? I'm giving you this picture in the WhatsApp and then you will mark your answers and write the proper spelling. ठीक है? Thank you so much.